بیوہ عورت کی کہانی اکیلے میں دیکھنا۔ استغفراللہ، پلیز اس کہانی کو بچے نہ دیکھیں۔ بھلا والدین بیٹیوں کے گھر میں کہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کے گھر میں رہنا ہمارے معاشرے میں بہت غلط بات سمجھی جاتی ہے۔ میری شادی کو بمشکل 10 دن ہوئے تھے کہ میرے شوہر کو اچانک لندن سے کال آ گئی کہ میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو واپس جانا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ میرے شوہر کا واپس جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر یہ جاب بھی ختم ہو جاتی تو دوبارہ اچھی جاب ملنا آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے راضی کر لیا کہ میں ان کے جانے پر اعتراض نہ کروں۔ میں شوہر کی مجبوری کو سمجھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور پھر میرے شوہر لندن چلے گئے۔ ان کے جانے کے اگلے ہی دن میرے شوہر کے جو رشتہ دار رکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی واپسی کا سفر باندھ لیا اور ایک ایک کر کے گھر سے سب چلے گئے، اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں اکیلی رہنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے پہلے ہی دن گھبرا گئی اور اپنے والدین سے کہا کہ میرے پاس آ کر رہ جائیں۔ اس لیے والد نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ وہ مجھے گھر لے آئے۔ اس طرح اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بھی اپنے میکے میں رہنے لگی، مگر کچھ روز رہنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے شوہر کی بات مانی، اور ویسے بھی مجھے اپنے ہی گھر رہنا چاہیے اور اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو جانا ہی تھا روزگار کے لیے، اور آج کل کے دور میں نئے روزگار ملنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے میں نے واپس اپنے گھر چلے جانے کی حامی بھر لی تھی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس پریشانی کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے بھی کیا تو میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں رہنے کا بندوبست کر لیا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ پریشانی رات کی تھی کہ رات کو اکیلے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرے شوہر نے ایک بوڑھے چوکیدار کو گھر کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ شوہر کا جاننے والا تھا، اور میرے شوہر کے بقول وہ بہت نیک اور اعتبار والا آدمی بھی تھا، اور اس بوڑھے آدمی نے صرف رات کو میرے گھر کی چوکیداری کرنی تھی۔ دن کے وقت اکیلے رہنا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ چونکہ گھر بہت دنوں سے خالی اور بند پڑا تھا، اس لیے بہت گندا ہو رہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اتنے بڑے گھر کی اکیلے صفائی کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس بوڑھے چوکیدار کا انتظار کرتی ہوں، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر صفائی کروں گی۔ پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ بوڑھا چوکیدار رات میں آئے گا اور میرے لیے رات کا کھانا بھی لے کر آئے گا، اور اگر میں چاہوں تو رات میں اس چوکیدار سے چائے بھی بنوا کر پی سکتی ہوں۔ میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میں کافی کی شوقین ہوں، شاید اس لیے میرے شوہر نے ایسے چوکیدار کا بندوبست کیا تھا جو گھر کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ مجھے چائے کافی بھی بنا کر دے۔ پھر میں نے ہمت کی اور گھر کی صفائی شروع کی۔ بہت ٹائم لگا، مگر گھر صاف ہو گیا اور سب کچھ اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا۔ گھر صاف ستھرا ہو چکا تھا، شام گزر چکی تھی اور میرا تھکاوٹ اور بھوک سے برا حال تھا۔ میں بڑی بے تابی سے اس چوکیدار کا انتظار کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا آدمی تھا، لیکن پھر مجھے شوہر کی بے فکری اور دلاسا یاد آ جاتا تو میں زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ اتنے میں دروازہ بجا، بوڑھا چوکیدار آ چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر اس کو دیکھ کر اپنے شوہر کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، اس کی بڑی سفید داڑھی تھی، صاف ستھرے کپڑے تھے اور نظریں مسلسل زمین کو تک رہی تھیں۔ حالانکہ وہ میرے والد کی عمر کا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور یہ بھی کہ میرے شوہر اس کو کیسے جانتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لیاقت ہے، وہ میرے شوہر کے دوست کا خاندانی ملازم ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تسلی ہوئی تھی، کیونکہ جو بھی ہو خاندانی ملازم نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی کچھ غلط کرتے ہیں، اور میں تو پھر اس کے مالک کی دوست کی بیوی تھی تو مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر کھانا کھایا، اور چونکہ میں بہت تھک چکی تھی اس لیے بوڑھے چوکیدار نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ مجھے کافی بنا کر دے سکتا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور آرام سے اپنے کمرے میں جا کر اپنی والدہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار میرے لیے کافی بنا لایا۔ کافی کا کپ مجھے دیتے ہوئے بھی اس کی نظر مسلسل جھکی رہی تھی۔ میں اس چوکیدار کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ کافی کی پہلی چسکی سے ہی مجھے مزہ آ گیا تھا۔ بہت ہی مزیدار کافی بنائی تھی۔ میں جیسے ہی کافی پی رہی تھی میرے اندر سکون سا اتر رہا تھا اور تھکاوٹ تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کافی پیتے ہی مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس رات میں چپ رہی، ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر 4 راتوں سے یوں ہی ہونے لگا۔ میں اٹھتی میرے جسم پر کپڑے۔ میرا نام فرزانہ ہے، میرا تعلق امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں اور اپنے سب گھر والوں کی بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میری والدہ تو سادہ سی خاتون ہے، اور میرے والد کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا، جس کو میرے والد نے خوب محنت سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے تعلیم حاصل کر کے میرے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جس سے میرے والد کے کاروبار کو مزید بڑھاوا ملا تھا۔ میرے بھائی ہم سب بہنوں سے بڑے تھے۔ میری بڑی بہنوں کی شادی میٹرک کے بعد کر دی گئی تھی، کیونکہ میرے والد کے بقول بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور جب بیٹوں کے پاؤں کمائی میں جم جائیں تب ان کی دلہن لانی چاہیے۔ لہٰذا میری بڑی بہنوں کی شادی کے بعد میرے والد نے میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی خاندان میں کر دی تھی۔ میری دونوں بھابیاں بہت ہی اچھی تھی، اور میری بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم رہ رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی نخریلی اور لاڈلی تھی، اور شاید مجھ پر نخرہ جچتا بھی تھا، کیونکہ میں بے تحاشا حسین لڑکی تھی اور نہایت ہی نازک مزاج۔
मुझे शुरू से पढ़ने का शौक था और जल्दी शादी के हक में नहीं थी। मेरा मानना था पढ़ लिख कर और फिर ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करने के बाद ही शादी हो, तब तक लड़की मैच्योर हो चुकी होती है। इसलिए मैंने अपने वालिदैन से ज़िद करके अपनी बात मनवाई और मज़े से पढ़ाई और साथ में ज़िंदगी के मज़े लूट रही थी और सबके लाड प्यार और तवज्जो की अकलौती वारिस बनी हुई थी। मुझे घर के कामों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। गर्मी की छुट्टियों की वजह से मैंने खाना बनाना सीख लिया था। मेरी वालदा इस बात के खिलाफ थी कि लड़कियों को घर के काम ना आते हों। मेरी वालदा का कहना था कि औरत असल हसीन तब होती है जब अपने घर का हर काम जानती होती है। बाकी बहनें तो फिर भी मेरी वालदा की फरमाबरदार थी, इनसे जल्द ही घर के काम सीख गई थी, मगर मुझे घर के कामों से उलझन होती थी। लेकिन अम्मी के डर से मैंने भी जैसे तैसे सब काम सीख लिए थे। वक्त गुजरता गया। जैसे ही मैंने बीए का इम्तिहान दिया, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए भी रिश्ता मुंतखब करने का सोचा। मैं पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई थी और फिर सबकी तवज्जो लाड प्यार ने मुझे मजीद हसीन बनाया हुआ था, इसलिए मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई थी। ये मेरी वालदा का कहना कि यही वक्त सही है कि फरजाना का रिश्ता कर दिया जाए। अगर रिश्तों को भी मना कर दिया, कुछ टाइम बाद रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी उम्र थी शादी की और अगर मजीद उम्र बढ़ गई तो कोई ना लेगा और ना ही मेरा हुस्न तब काम आना था। मेरी वालदा की बात में वजन था, इसलिए मेरे वालिद ने मुझे समझाया कि अब ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि लड़की की उम्र ज्यादा हो जाए तो इसके रिश्ते आना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैंने भी अपने वालिदैन की मान ली और कह दिया जहां चाहे मेरी शादी करें, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। मैं घर में लाडली थी और अपनी मर्जी की थी, मगर ऐसी फितरत की नहीं थी कि अपने लिए खुद लड़का पसंद करूँ। ना ही मुझे कभी किसी लड़के में दिलचस्पी महसूस हुई थी। मैंने सोच रखा था कि शादी जब भी करूंगी अपने वालिदैन की मर्जी से ही करूंगी, इसलिए स्कूल कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ते हुए भी मैं बहुत मोहतात रहती थी और हमेशा खुद को पर्दे में ही रखा था कि कुछ भी हो लड़की के लिए इसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है। और फिर मेरे वालिदैन और मेरे भाइयों ने किसी की परवाह नहीं की थी और मुझे आगे पढ़ने दिया था, तो मैं कैसे इनके एतबार को तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने तालीम हासिल करने के दौरान कभी कुछ ऐसा नहीं होने दिया था। और अब जब रिश्ते की बात आई तो मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं इनकी मर्जी से शादी करूंगी। मेरे वालिदैन बहुत खुश थे कि मैं लाड प्यार में भी अपनी हद से नहीं गुजरी थी। फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते की तलाश होने लगी। रिश्ते तो बहुत सारे थे, मगर मेरे वालिदैन बहुत छानबीन कर रहे थे। वो बेहतरीन रिश्ता ढूंढना चाहते थे कि मुझे बाद में कोई तकलीफ ना हो और खुशी से रहूं। खैर, ये चाहत तो हर माँ बाप की होती है कि इनकी बेटियों को अच्छा मर्द ही मिले। अब ये तो बेटियों का नसीब होता है। आखिर एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जैसा मेरे वालिदैन चाहते थे। उसामा मेरे भाई का जिगरी दोस्त का कजन था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा भी था। वालिदैन का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। भाई के दोस्त खालिद का कहना था कि उसामा ने माँ बाप के बगैर बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, मगर इसने कोई बुरी आदत नहीं अपनाई और ना ही किसी बुरी सोहबत में पड़ा था, बल्कि तालीम हासिल करने के साथ साथ उसामा ने अपने वालिद के कारोबार को सही टाइम और मेहनत दी, जिससे इसका कारोबार बहुत बढ़ गया है। रुपए पैसे की बहुत रेल पेल थी और अब तो उसामा को लंदन में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और कारोबार को उसामा ने अपने वालिद के बहुत ही पुराने खास और एतबार वाले मुलाजिम के हवाले किया हुआ था। इस तरह से पैसा दोनों तरफ से बरस रहा था। और अब जब वो लंदन से छुट्टियां गुजारने हमारे घर अपनी खाला यानी खालिद भाई की वालदा से मिलने आया तो मेरी वालदा ने उसामा को शादी का कहा और साथ में ही बहुत से रिश्ते भी बता डाले। इन्हीं लड़कियों में फरजाना का जिक्र और इसकी तस्वीर भी थी और उसामा को फरजाना बहुत पसंद आई थी, इसलिए थोड़ी बहुत छानबीन की गई। उसामा से एक दो बार जाकर मुलाकात भी की गई और वाकई वो इस काबिल था कि इसका रिश्ता कबूल किया जाता, इसलिए इस रिश्ते को हाँ कर दी गई थी। और फिर शादी की तैयारियां होने लगी, क्योंकि उसामा शादी करके जाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द अपनी बीवी को भी अपने पास बुला सके। और यूं झटपट मंगनी और झटपट मेरी शादी उसामा से कर दी गई। मैं वैसे तो खुश थी, उसामा की बहुत तारीफ सुन रखी थी, मगर अंदर ही अंदर दिल बहुत डर रहा था कि फिर भी वो शख्स मेरे लिए अनजान था और ना जाने मेरे साथ इसका क्या रवैया होगा। मैं अगले घर भी बहुत ऐसे रहूंगी या बहुत सी लड़कियों की तरह मुझे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी सोचें थी जिसने मुझे डराया हुआ था और मैं थोड़ी परेशान भी थी और अपने इतने प्यार करने वाले वालिदैन और भाइयों को छोड़कर जाने पर बहुत ज्यादा उदास भी थी। सब मुझे बहुत सी तसल्लियां और दिलासे दे रहे थे और फिर वो दिन आ गया जब मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी, क्योंकि मैं अपने वालिदैन और बहन भाइयों की लाडली थी और उसामा अकलौता और बहुत पैसे वाला था, तो दोनों तरफ से किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी गई थी। और चूंकि उसामा के वालिदैन हयात नहीं थे और भाई बहन भी कोई नहीं था, इसलिए खालिद भाई का पूरा खानदान उसामा की फैमिली बन गया और शादी की रसूमात की गई। शादी के इंतजाम सब इन्होंने मिलकर अदा किए। उसामा की फूफियों और खाला तो शादी के बाद भी रुकने वाली थी कि नई नवेली दुल्हन को अभी वक्त लगेगा। उसामा वाकई बहुत अच्छे शोहर साबित हुए थे। इन 10 दिनों में उसामा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं माँ बाप का घर छोड़कर आई हूँ। उसामा मेरी छोटी से छोटी बात और ख्वाहिश का एहतराम कर रहे थे। इस सब ने मुझे बहुत खुश कर दिया था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते ना थकती थी और मेरे वालिदैन भी मेरे चेहरे की खुशी देखकर बहुत खुश थे। अब जब उसामा को अचानक लंदन जाना पड़ा तो मैं बहुत उदास और परेशान हुई थी और अकेले घर में रहना भी मुश्किल था, मगर मुझे हर हाल में समझौता करना था और वैसे भी बहुत कम ही टाइम था। उसामा वैसे भी मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था और रात के लिए एक चौकीदार भी तो रख दिया था। और इसके बाद जो हुआ इसने मेरे होश उड़ा दिए। जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म पर कपड़े
कपड़े नहीं थे और एक चादर मेरे ऊपर पड़ी थी। हालांकि मुझे याद था कि मैंने कपड़े भी पहन रखे थे और चादर तो थी ही नहीं। बेड पर तो ये सब कैसे हुआ? मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था और फिर मुझे नींद भी तो गहरी आई थी और मेरे अलावा घर में एक ही बूढ़ा चौकीदार था जो सुबह होते ही शायद जा चुका था। कहीं इसने तो मेरे साथ कुछ गलत। इस सोच से मेरी रूह लरजने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बात भी ऐसी थी कि मैं उसामा से जिक्र नहीं कर सकती थी। लेकिन जो भी हुआ था सही नहीं था। मैं बहुत परेशान थी कि मुझे नाश्ते का भी होश नहीं था। फिर उसामा की कॉल आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मूड नॉर्मल रखा और उसामा से बात की। बातों बातों में उसामा ने बताया कि सुबह तुम सोई हुई थी और चौकीदार मुझे बताकर चला गया था कि अंदर बीबी को बताना नहीं जाता, मुनासिब नहीं लगता, वो सोई हुई हैं। इस बात ने मुझे चौंका दिया था कि वो अगर इतना एहतियात वाला था तो रात में कैसे कुछ कर सकता है मेरे साथ। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी और फिर मैंने उसामा से दोबारा इस चौकीदार का पूछा तो उसामा ने कहा कि इस पर आंखें बंद करके यकीन करो जैसे मुझ पर करती हो। इस बात से मैंने सोचा कि शायद मुझे ही नींद में गर्मी लगी होगी, मैंने कपड़े उतार दिए होंगे, मगर ये बहुत हैरान कुन बात थी। खैर मैंने अपने दिल को किसी तरह मुतमईन करने की नाकाम कोशिश की और उठकर अपने घर के काम करने लगी। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। शायद कल की थकावट का असर था। ऐसे ही दिन गुजर गया और रात को चौकीदार कल वाले टाइम पर ही आया था और मेरे लिए खाना भी लाया था। पर कल की तरह ही इसने नजरें झुकाई हुई थी और मुझे खाना देते ही वो चौकीदार बाहर गेट पर जाकर बैठ गया था। मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गई कि वाकई मुझसे ही नींद में कुछ हुआ था। फिर मैंने खाना खाया, कुछ देर अपनी वालदा से बात कर सोने का इरादा किया कि वो चौकीदार फिर से कॉफी ले आया। वो कॉफी बहुत मजे की बनाता था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई और कॉफी पी ली। और कॉफी पीने के दौरान ही मुझे सुकून और गुनूदगी तारी होने लगी और कॉफी पीते ही मैं सो गई थी और सुबह उठी थी। एक बार फिर मैं चादर में सोई हुई थी। अब ये बात मामूली नहीं थी, मैंने कभी नींद में ऐसा नहीं किया था, तो अब ऐसा क्यों हो रहा था? और आखिर क्या बात थी कि मैं इतनी गहरी नींद सो जाती थी? इतनी सोचों ने मुझे घेर रखा था। मैं अपने वालिदैन को बताकर परेशान नहीं कर सकती थी और शोहर को बताती थी, इनका दिल मुझसे खट्टा हो जाता। मैं बहुत परेशान रही और किसी से जिक्र भी नहीं किया था। मैंने सोच लिया कि आज इतना काम ही नहीं करती कि मुझे थकावट से गहरी नींद आए और किसी बात का होश ना रहे। सारा दिन मैं इसी सोच में रही और परेशान होती रही। परेशानी से बुरा हाल था, जरूर कोई था, कुछ तो गलत हो रहा था और इसी सोच ने मेरा हाल बुरा किया हुआ था। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर क्या माजरा है। इसी सोच में रात हो गई। रात खाने के बाद इस बूढ़े चौकीदार ने मुझे कॉफी लाकर दी तो मैंने शुक्रिया बोलकर कॉफी का कप ले लिया और चौकीदार के जाने के बाद मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और कॉफी को गुसल खाने में बहा दिया। मैंने खाना भी बेड के नीचे रखा हुआ था और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। कॉफी गिराने के बाद मैंने कप को टेबल पर रखा और आंखों पर हाथ रख लिया। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसका मतलब कि खाने या कॉफी में कुछ मिला हुआ था। मैं खामोश पड़ी लेटी रही। दिल बहुत डर रहा था मगर मैं आज हर हाल में हकीकत जानना चाहती थी। मुझे लेटे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजरा कि मैंने कमरे के दरवाजे के पास खटपट की आवाज सुनी। कोई बाहर से मेरे कमरे का लॉक खोल रहा था। इस बात ने मेरी जान निकाल ली थी। मतलब मेरा शक सही था, कोई था जो कमरे में आता था, मगर कौन? मेरा दिल धड़क रहा था। मैं खामोश लेटी रही। फिर मैं मुजरिम का असल चेहरा देखना चाहती थी और फिर दरवाजा खुला तो जो चेहरा मुझे नजर आया इससे मेरे सर पर आसमान आ गिरा था। अजियत और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। वो कोई और नहीं, मेरा अपना शोहर था। मैं फटी फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। कपड़े वही चौकीदार वाले थे, बस चेहरे पर नकली दाढ़ी और नकली सफेद बाल आए हुए थे। मेरे शोहर को भी शायद झटका लगा था। मेरे शोहर को शायद अंदाजा नहीं था कि मैं आज जाग रही होंगी, इसलिए इनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। मगर मेरा सदमे से बुरा हाल था। मैं अपने शोहर के ही हाथों इतने दिनों से अजियत सह रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसामा भी जैसे बोलने की पोजीशन में नहीं था कि मुझे वो कैसे सफाइयां दे। मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। सुबह का इंतजार करने लगी कि जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने भाई को कॉल की, घर आए मुझे ले जाएं। भाई परेशान हो गए थे, वो मुझे लेने आ गए थे और उसामा को देखकर हैरान हुए थे। उसामा ने मुझे रोकने और वजाहत देने की कोशिश की मगर मैं इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं भाई के साथ अपने मेके आ गई थी और बहुत बीमार पड़ गई थी। ये सूरत हाल मेरी बर्दाश्त से बाहर। मेरे शोहर का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे वालिदैन बहुत दुखी हुए थे। फिर इस तरह 3 माह गुजर गए। एक रोज मुझे खालिद भाई मिलने आए। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और मैं इनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए मिलने से इनकार नहीं कर सकी। भाई ने मुझे कहा मैं उसामा को माफ कर दूं। ये सारा फसाद खालिद भाई की बहन का फैलाया हुआ था जो उसामा से शादी करना चाहती थी। खालिद भाई ने मुझे कहा कि उसामा से मिलो और इससे बैठकर बात करो। मैंने खालिद भाई की बात मान ली और उसामा से मिलने पर राजी हो गई। उसामा बहुत कमजोर हो गए थे और बहुत शर्मिंदा और गमगीन थे। इन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे बताने लगे कि मैं जब लंदन से वापस आया तो खाला ने मुझे कहा कि शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? और फिर मुझे बहुत सी लड़कियों के बारे में बताने लगी कि इन लड़कियों में तुम्हारा जिक्र आया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फौरन से खाला को कहकर तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया। मैं तुम्हारे हर नाज नखरे उठाने के लिए तैयार था।
मैं बहुत खुश था और शादी की तैयारियों में जी जान लगा रहा था। फिर एक रोज खाला की बेटी आयमा मेरे कमरे में आई और जैसे कुछ बताना चाहती थी। मैं इसको अपनी छोटी बहन मानता था, इसलिए मैंने प्यार से बिठाया और बोला कि जो बात है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पर आयमा ने मुझे बताया कि फरजाना अच्छी लड़की नहीं है, इसने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, सबके सामने मासूम और शरीफ बनती है मगर हकीकत में ऐसी नहीं है। इसका बहुत से लड़कों के साथ चक्कर है, मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ इसलिए सब जानती हूँ, और सबको पागल बना रही है। और आपके घर तो फिर भी कोई नहीं होता, आप जब नहीं होंगे तो वो लड़की लड़कों को घर तक बुलाएगी। आयमा की बात सुनकर मेरे सर में धमाके हो रहे थे। शादी में 2 रोज बाकी थे और इसने मुझे ऐसी बात बताई, इस बात से मेरा दिल टूट गया था। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी और इसकी यह हकीकत थी, आयमा बहुत मासूम और अच्छी लड़की है, और मेरी कजन भी, जबकि फरजाना को मैंने सिर्फ तस्वीर में देखा है और खाला की जुबानी सुना था, इसलिए इसकी बात जुटला नहीं सका। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए सोच लिया कि तुम्हें खुद आजमाऊंगा। और फिर मैंने शादी के 10 दिन बाद जाने का ड्रामा किया और फिर चौकीदार का रूप धाकर तुम्हारे पास आता रहा। अगर तुम बुरी हो तो इस सब से भी नहीं घबराओगी, बल्कि इस आदमी को ढूंढोगी जो रात में आता था और दिन में भी कोई ना आता तुम्हारे घर। मगर इन चंद दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, बल्कि तुम मुझे परेशान और डरी हुई लगी। मेरा इरादा था कि 1-2 रातें और आजमा कर फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। मेरा राज पहले ही खुल गया, मैं बहुत शर्मिंदा हो। खाला की डांट पर इनको सारी सच्चाई बता दी तो खाला ने आयमा को बुलाया, सख्ती से पूछा कि अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं फिर जाकर इसके घर बात करूंगी, अगर तुमने गलत बयानी की है तो तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। इस बात पर आयमा रोने लगी और बताया कि मैं उसामा से शादी करना चाहती थी। इसने कहा कि मैंने फरजाना पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैंने झूठ बोला था, वो बुरी नहीं है, मुझे माफ कर दें। कहकर वो रोने लग गई। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन खाला ने मुझे सगी माँ वाला प्यार और मान दिया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मेरी फरजाना से मुलाकात करवाएं और इसको मेरे लिए मनाएं। ये कहकर उसामा खामोश हो गए और फिर बोले, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मेरी नादानी थी जिसकी तुम चाहो जो सजा दे सकती हो। मैं इनकी बात सुनकर रोने लगी, मगर इतने रोज उसामा से ना मिलकर बहुत ज्यादा सजा दे दी थी और इनका ज्यादा कसूर भी नहीं था, इसलिए मैंने उसामा को माफ कर दिया और इनके साथ घर चली गई। आप बताएं मैंने सही किया या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।